So welcome to all of you to have extended your valuable time, your inputs, which we're going to hear now one after the other. We're really looking forward for some kind of a solution because we know that this is perhaps the most critical situation that we all are passing through. So stalwarts like you would of course help us in understanding how to brave this out. So to begin with, we have on board with us Mr. B.S. Nagesh. He is the founder of Terrain, Trust for Retailers and Retail Associates of India. He has been one of the founding members of Shopperstock with a steeping 38 years of experience in retail. And he apparently happens to be the first Indian and Asian to be a part of the World Retail Hall of Fame in 2008. Kudos to you, sir. It's a pleasure bringing you to be a part of us. The Helen Keller Award for creating livelihood opportunities for persons and disabilities and an Ashoka Fellow. Welcome on board, sir. We are proud to have you amongst us. Then we have Hemanji. He is the director KKCL. He personally supervises the operation of brands Killer, Easy's and Decibel. An effective leader who steers KKCL with a clear vision to give promising returns to investors, providing stupendous growth. He has a decade of experience. Welcome, Hemanji. You've really proved it to us even last time. Thank you so much. We have Mr. Rakesh Jhalipalli. He is the COO for USPA and Flying Machine with over 14 years of rich experience in the fashion industry across textile and garments. Started from Raymond's for 6 years and now with Arvind Fashions for almost 7.5 years. A jewel from IIM Lucknow 2007 batch, loves traveling, watching movies, playing cricket. He reminds me of one of those heroes from out of certain, books or novels I used to read who are into all this gaming and playing and things like that. So welcome, Mr. Jhalipalli. We really are happy to have you with us. Thank you. We then have Mr. Manohar D. Chatlani, CMD. That name doesn't ring a bell. Manu Bhai rings a bell. So Manu Bhai, we really welcome you. He comes from a family of retail background, has more than 45 years in the retail sector. Today, Soch has 122 stores in the women's ethnic brand category, does a lot of philanthropic work, sponsoring over 100 life-saving heart surgeries a month for poor and needy through Have a Heart Foundation. Is a big fan of old Hindi songs, so we are partners. There are 3 different businesses that he looks into, as in retail estate and garment manufacturing, and employs about 1,800 employees. Then we come to Mr. Vipul Mathur. Mr. Vipul Mathur is again a known name in the house of garments and textile. Mr. Vipul Mathur is now the business head of Udaan.com in the lifestyle division. It is a B2B e-commerce platform. Mr. Mathur has over 20 years of rich experience, and also he was there also as a CEO of Mufti and also a founder member of abof.com, that is Aditya Birla Fashion.com, and has been a chief merchandising officer of an e-commerce venture of again Aditya Birla. He leads the business. He used to lead the business as the brand director. Welcome, sir. Welcome on board. Thank you. Last but not the least, we have Ramesh Podarji. Ramesh Podarji, we fondly, of course, he is Mr. Ramesh Podar, but we fondly call him Ramesh Ji. We all know he has been there and done that. An epitome of knowledge, probably in the complete value chain of the lives of textile and the garment industry, and a highly grounded person. I have that experience. I'm sure most of you do have the same experience. And he understands immensely about the textile and the garment industry. So today our topic is Customer Bulao, Retail Jitao. Idea is to make the retailers win, and how do we get our customers back to the store, or what are the ways ahead?
So I now leave the floor open, and I request Mr. Sanjay Chawla, our editor publisher, who's going to take over as the moderator, and our director, Mr. Salil Chawla. These two gentlemen have been the pillars of DFU publications, and they've really taken it ahead. I request all of you to please join in, and we start this webinar for the rest of the people around. Thank you so much. आज का वेबिनार का सब्जेक्ट है कंज्यूमर बुलाओ एंड रिटेलर जिताओ। मैं कुछ इसका बैकग्राउंडर इंफॉर्मेशन यानी भूमिका बांधता हूं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड इंडस्ट्री का चक्कर। व्हेन आई से चक्कर, इट डज नॉट मीन कंफ्यूजन, इट मीन्स एक्चुअली चक्र, इंडस्ट्री साइकिल, यानी फुल 360 डिग्री साइकिल ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का साइकिल है, रिटेलर माल बेचेगा तो होलसेलर से और माल खरीदेगा, और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ पेमेंट भी चुकाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचेगा तो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, ब्रांड के पास जाएगा, कुछ और माल खरीदेगा और कुछ पेमेंट भी चुकाएगा। इस तरह ब्रांड और मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को फर्दर एक्टिवेट करेंगे और इंडस्ट्री में सारा चक्र घूमेगा और इंडस्ट्री में एक्शन आएगा। अब लेट अस कम टू रिटेलर का चक्र और चक्कर। 2 महीने से दुकानें बंद हैं, रिटेलर के पास कैश खत्म है, कंज्यूमर फैब्रिक और गारमेंट परचेज को प्रायोरिटी नहीं गिन रहा, कुछ खरीदेगा भी, कुछ खरीदना भी होगा तो कस्टमर दुकान पर आने से डर रहा है। दुकान को, इसका मतलब है दुकान को कोरोना फ्री करना पड़ेगा, फिट फाट तैयार करना पड़ेगा। तो फिर कितने कस्टमर आएंगे, कितना खरीदेंगे? मतलब ये कि मामला गड़बड़ है, इतना आसान नहीं है। फिर भी मुद्दे की बात तो ये है कि कंज्यूमर आएगा तो रिटेलर जीतेगा। सो कंज्यूमर को बुलाओ और रिटेलर को जिताओ और इंडस्ट्री को एक्शन में लो। वी हैव an esteemed panel of experienced keynote speakers amongst us. They are all very capable of addressing all the subjects and topics, but as per the format, we shall wish and request our keynote speakers to speak on one of the subjects. First of all, मैं मन्नू भाई को बुलाना चाहूँगा to speak on the subject, how to get customers back to the stores, what are the potential challenges? I think the biggest problem, biggest challenge we have is removing the fear from the mind of the customer. और ये जब तक ये fear है, कोई घर से नहीं निकलेगा। और ये fear कब तक रहेगा? How long can they stay at home? One of the ways, few of the ways what we can get rid of this fear of the customer is to assure them a safe environment. जो हर एक फोरम में हर एक आदमी बोल रहा है, सैनिटाइज, ग्लव्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो ट्रायल करते हैं गारमेंट्स को आयरनिंग किया जाए या स्टीमिंग किया जाए, और अल्ट्रावायलेट, टू सी दैट द कस्टमर हैज गॉट द कॉन्फिडेंस कि अगर मैं आपकी दुकान में आता हूँ तो मेरे को वायरस नहीं लगेगा। अभी फिलहाल जो बिजनेस हो रहा है, इट इज पार्ट ऑफ दिस पेंट अप डिमांड। I don't know how long we can sustain even the present business with this fear. So ये fear को हटाना है, and the statistics which are coming, to give you a comparison, 1200 people die in India every day from TB. I'm not saying that we should ignore this virus, but somewhere perspective, I think we have overestimated this perspective of this virus to do harm. It is not as deadly or as dangerous as we think. It spreads more than any other virus which we have known so far. So ये fear अगर हट जाए, तो I think business will slowly come back to normal. Apart from sanitizing and cleaning the store, I think the transport, government will have to think of some way where public transport, people have the confidence to come in public transport. And of course, to attract the customers, we need to give discounts, maybe more better discounts than online, and on newer merchandise than online. I think it's a question of time. Public memory is short, and I think things should become normal very, very fast. I am quite hopeful.
तो हम राकेश जी से जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस post this COVID-19. I would like to talk about what are the consumer behavior changes that we are seeing post-COVID and which we are calling that as a new normal. Most importantly, consumers have started thinking because of the 2 months of lockdown that what do they need to spend on and how much they need to spend on. So that is a thought process that's going on. And in terms of research, जैसे मनु भाई बोल रहे थे, it's actually a fact that almost 50% of the people are in fact worried about their future income. This is as per the research recently conducted by BCG, and almost about 43% people are thinking about has actually a negative outlook on future spending. So basically we are saying that on all the consumers, almost 50% people are actually worried on income and also spending. So which means it's not only fear, it is also fear combined with the other things which are impacting due to this COVID pandemic. And that's also one of the factors we need to think on, because ultimately retail is driven by consumer spend. Disposable income ज़्यादा होगा तभी retail sales बढ़ेंगे. I mean, that's what happens. I think that's the concern today, and I think all said and done, we still have our work cut out, which is what it means, because consumers are not ready to come to retail at this point of time. They have certain apprehensions combined with income and spend levels. Now coming to what I would like to touch upon few points which I think talk about what changed consumer behavior because of COVID. So one of the clear things that people are opting for is that, I mean, I'll not say clearly that, but is on online shopping for that matter. Basically due to convenience. It's not just because of some offer is coming in or something, but it is because they don't want to step out. So when the situation is that, I think stores from, I mean, all of us retailers point of view should look from an online to offline combined integrated approach. So maybe we have to start adapting technology and adopting technology. We should think about how we can actually tell the consumer that coming to the store or even in staying at home and still shopping from store can be convenient to them. So which means we can look at hyper local deliveries. That's the keyword. और the other keyword that's going on is contactless delivery. मतलब contact कितना कम हो उतना confidence रहेगा customer को to come to the store or for that matter to purchase from home. So we can look at different aspects to enable that. So one is pick up. I mean, people can buy from store, pick up. I mean, delivery at home, or pick up or buy from home and pick up from store. So that can be one of the things that each of us as a retailer should give as a convenience to the consumer. I think that is very important to ride out the fear to a certain extent. That is one. Second clear trend is that people don't want to spend outside, I mean, much time outside for shopping. So when that is going to be the case, so we should look at home-based appointments or for that store-based appointments. So basically people want to avoid large gatherings. उनको डर है कि COVID आएगा, whatever, virus आएगा, when too many people are there can be carriers around. So maybe stores again have to look at how they can space out employees, I mean the staff that is in the store, and also space out the customers during the time, so that we can actually look at maybe home-based appointments, which means that staff has additional responsibility of maybe going to the store if going to the home if it's required, and send an e-catalog to the consumer, use that as a selection criteria, and then maybe deliver at home. That can be one thing. Or the reverse, saying that if you want to come to the store and have the experience, maybe give them a time slot, so that they can come and they don't have too many people in the store. So basically the idea is to give confidence to the consumer that in the store, whenever you are there is no chance of maybe getting the virus, or at least the confidence that we are cleaning the store, the environment that you're going to shop is very healthy. The third one is actually the one that I told you. They want to shop in a safe and healthy environment. So they really want that to happen. So we really need, I mean, we as retailers should think on how do we create that environment and consumer confidence, showing them that the store is a very healthy space to right now to shop, which means we can create some videos of how the shop is actually being maintained, the upkeep is maintained, and second, how we are welcoming the customers. I mean, the sanitizer is there, sanitation process, how we are, I mean, at least from our my set of brands, we are trying to avoid trial to start with, so that there is limited chance of virus transmission, if at all any.
So, I mean, what are the measures that every store or every retailer is looking at, and what is he taking to ensure that when the customer comes, it is a safe environment too? We should ideally use right now digital media, maybe a WhatsApp or a Facebook or social media to convey that message. I think that will bring in some confidence to people, because all said and done, a lot of people still are going to supermarkets to buy essentials. It's not that everyone have converted completely to online. So if you can give them confidence that store also is a safe environment, I'm sure when people want to buy, they will come in and buy. Fourth important aspect that we see is that since people are not coming in, obviously there'll be less walk-ins initially in the store. But again, the customer who comes will be a decisive customer. He will not be an impulse purchase customer. Like window shopping is of bygone days, maybe for at least next 3-4 months. People who want to come will actually think about buying and then coming in. So it's a good chance for all of us retailers to actually improve our KPIs. I mean, create more core range or availability of core in the store. And second is more relevant products that they will need in this period of time. So if we can actually make the assortment relevant for them, and of course, value for money is also important, I think people will slowly come in, and of course, word of mouth will also help. Because if someone has come to a store and has seen that everything was fine and he's gone back, he will tell 10 other people. So then they will also look at coming to the store. So I think these are the 4 changes that are clearly seen in terms of consumer behavior. And lastly, I feel that each one of us should definitely not run away from technology. We should try to adopt and adapt technology. It's very important because, I mean, in whatever way we can. I mean, I'm not saying that everyone has to do everything, every part of technology, but whatever at our level, e-catalog can still happen at a smaller MBO level as well. So they have to figure out and send to their consumers. So at every level, each of us have to adopt and adapt technology to actually reach out to the consumers, build confidence, and then maybe after that, they will start coming in with greater confidence to the stores. We have with us my friend, Mr. Vipul Mathur. He, as Shabani introduced him, he is business head for Udaan.com. So I will request Vipul Mathur to talk on the subject, how to get the new transformed store ready, keeping safety, hygiene, and the relevant technology upgradation in mind. Vipul, please. Thank you, Sanjay. Hi, good afternoon, everybody. पहले तो ना एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि सैनिटाइजेशन, क्लीनिनेस, वायरस, इन सब से किसको बचाना है? और मुझे लगता है कि इसके 3 आंसर्स हैं. कस्टमर को बचाना है सबसे, क्योंकि कस्टमर अगर इन्फेक्टेड है तो ये बात जल्दी मार्केट में फैल जाएगी तो जो धंधा आ सकता है, आने वाला है, वो नहीं आएगा. दूसरा, अपने एम्प्लॉइज को बचाना है, क्योंकि एम्प्लॉइज जिंदगी और जान को खतरे पे लेके स्टोर में आ रहे हैं. और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को बचाना है. और इसके भी 2 हिस्से हैं कि ये वायरस दिखता नहीं है तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, ये है कहाँ, ये पता नहीं चलता है. तो उसके 2 हिस्से हैं. एक तो परसेप्चुअली कस्टमर को और एम्प्लॉइज को ये फेथ होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू अ सेफ प्लेस. और दूसरा, रियलिटी के अंदर हर संभव प्रयास हमें करना चाहिए कि ये वायरस अगर हो तो कंट्रोल में आए. और इसके लिए ना RAI ने रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़ा डिटेल नोट जारी, तो हम कैसे कर सकते हैं. और बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो की जा सकती हैं. सो मान लीजिए आपके दुकान के अंदर एंट्रेंस पे अगर दुकान बड़ी है तो वहाँ एक कार्ड हो सकता है. अगर नहीं है तो हम वहाँ पे एक स्कैनर लगा सकते हैं जिसमें हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. बोर्ड लगा सकते हैं, उस पर कह सकते हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इफ यू आर इन फीवर देन प्लीज डू नॉट एंटर द स्टोर. उसके 2 advantages हैं. Obviously, एक तो it will prevent people to enter, but it will also give everybody a confidence that there is a certain degree of consciousness which the store owner displays in preventing and spreading of the corona. What should we do the baggage counters? Can we keep the distance of 6 feet? Can we keep the tokens which are disposable? Is there a way that the merchandising which is kept, उस merchandising पे लोगों को बोले only if you are seriously interested in buying, please touch it. क्या हम एक नोट लगा सकते हैं वहाँ पे जहाँ हम लाइक कि आप अगर आप खरीदना ना चाहें तो उसे ना छुएं, क्योंकि पता नहीं आपको है कि नहीं है. इस merchandise को सैनिटाइज करने का तरीका है that over 25 hours corona kills itself, or you can iron them at certain frequency. So जब consumer
ट्रायल रूम में जाता है या ट्रायल करके देखना चाहता है, उसको बोलते हैं अगर आप 2 मिनट इंतजार कर सकते हैं तो वी कैन आयरन इट। स्टीम आयरन से आयरन किया सकता है, हॉट आयरन से आयरन किया सकता है। मनु भाई बता रहे थे कि सुबह अखबार पढ़ने के लिए अखबार आयरन करके पढ़ते हैं। दिस शो शॉर्ट वे टू यूज टेम्परेचर एज अ मेथोडोलॉजी टू किल द कोरोना इफ इट एग्जिस्ट। ऑल्टरेशन के लिए कोई आया, रिटर्न के लिए कोई आया, एक्सचेंज के लिए कोई आया तो क्या करेंगे? We'll have to reduce it. We'll have to indicate that no, we are not taking it. Again, it is doing 2 things. It is preventing virus to enter, and it is also creating perceptual faith in the consumer and employees in the mind of that this place is corona free. So we have to desanitize the stuff which is there in the store and desanitize the stuff which is coming into the store. I think all employees should be very thoroughly scanned for their own safety, and if they come to the store, then your safety, because they are coming into your store, and for the safety of the consumer who's putting the faith that you have sanitized the store, and he's putting that faith and coming to your store. तो उन सब की हिफाजत के लिए important है that employees को टेम्परेचर स्कैन किया जाए, उनकी तबीयत खराब हो तो उन्हें घर पे रहने के लिए बोला जाए, आधे लोगों को बुलाया जाए, शिफ्ट को एक्सटेंड किया जाए। ये जो सारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या रिटेल एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, बड़े काम के हैं। हाउसकीपिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं कि क्लोरीन की किस मात्रा को आप साफ करने से ये क्लीन होता है, साफ करने के क्या तरीके हैं, डिस्पोजल मैकेनिज्म्स क्या हैं। कस्टमर मास्क के साथ आता है और उसको फेंकना चाहता है, ग्लव्स पहन के आता है उसको फेंकना चाहता है, या आपने दुकान में ग्लव्स रखे हैं उनको हम डिस्पोज कैसे करेंगे। एम्प्लॉयज को ये बताना कि यू कांट शेयर द लंच, यू हैव टू यूज योर प्राइवेट व्हीकल्स बिकॉज you don't know whether any of the transit is happening through any of those mediums. यहाँ किसी ने एक प्रश्न मुझसे पूछा कि क्या ये मेडिकली प्रूवन है कि आयरन से मर जाता है। मेडिकली प्रूवन ये तो है कि 100 डिग्री के ऊपर मर जाता है और आयरन 120-180 डिग्री के स्पेस में काम करती है, तो ये मान लेना शायद ठीक होगा कि कोरोना से मर जाता है। इसके साथ एक और भी चीज है, इफ यू गो आउट एंड बाय स्टफ, so you have to get stuff and a merchandise in your store. Can you buy it online? Udaan and other B2B portals does a fantastic job. You will have lesser amount of money, and the customer will have lesser amount of money. So can you buy more frequently with a smaller amount of chunks so that you have longer liquidity available with you? Or is there a way that Rakesh was talking about? Can you use WhatsApp as a mechanism to then sell online? So can you move part of sales to online? Can you get to the same degree of sales without actually getting as many number of customers inside your stores? Is that possible? Can you do home delivery? People feel safer. आपके दुकान में मैं जाना चाहता हूँ और वहाँ मुझे खतरा हो सकता है. Can you do a home delivery? So going to the markets, let's say if you have to go and if you're an apparel retailer, you might have to go to Delhi, Bombay, Ahmedabad, Calcutta, Tirupur. Can you avoid going there? And you use mechanisms of alternative sourcing that the goods come to you. If you use all of this, then I think 3 things will happen. You will remain safe. Your employees will remain safe. Your customer will remain safe. Their faith over a period of time that they can buy goods without any mishap, established over a period of time, and then business grows up. So that's my view on what can be done. Next, we have Hemant Bhai, Director KKCL, owners of brands like Killer, Lawman, Easy's, and Integrity. हेमंत भाई बहुत यंग एज से बिजनेस के अंदर हैं और उनका अपना रिटेल स्टोर भी रहा है, करमचंद. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स एट देयर डोर स्टेप. हेमंत भाई प्लीज. नमस्कार संजय जी एंड नमस्कार एवरीवन. संजय जी, जैसे कि अभी हमें सबको पता है कि कोविड के बाद कस्टमर फुटफॉल तो कम होने वाला है और ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा. कस्टमर फुटफॉल कम होगा. कस्टमर फुटफॉल कम होगा तो अब हमें ये देखना होगा कि हमें अपने बिजनेस को भी रन करना है, हमारे एक्सपेंसेस, अपने प्रॉफिट को भी मेंटेन करना है. तो सबसे पहले तो रिटेलर्स को फर्स्ट थिंग ये करना होगा कि उसको प्रायोरिटीज पे सेफ्टी नॉर्म्स इज अबव द प्रॉफिट रखना होगा. अबव द प्रॉफिट रखना पड़ेगा ताकि कस्टमर को, आज कैसा है कि
जब जो भी कस्टमर आज हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उस सबसे पहला उसका फर्स्ट फोकस होगा कि स्टोर में सेफ्टी नॉर्म्स है या नहीं। तो हाइजीन के साथ सेफ्टी मेजर भी उसको सेफ्टी मेजर को भी उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका कस्टमर का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि बस यस स्टोर इज गिविंग मी ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स, आई विल नॉट कम। सो जो भी कस्टमर आ रहा है हमारे पास, ये राइट बात है कि कस्टमर फुटफॉल कम होगा। कस्टमर अगर सपोज पास्ट सीजन में अगर हमारे शॉप्स में अगर 50 कस्टमर आ रहे हैं तो इस बार हो सकता है 25 कस्टमर आ रहे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जो कस्टमर आज आपके शॉप में आ रहा है वो क्वालिटी कस्टमर है, सिंसियर कस्टमर एंड सीरियस कस्टमर है। तो आधे प्रॉब्लम तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो गए। आधे प्रॉब्लम में ये है कि अब रिटेलर को अपने कंज्यूमर के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, रिलेशनशिप बढ़ानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे ज्यादा से ज्यादा बिके और बिल साइज कैसे बड़ी होगी। आज भी हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दो सेक्टर्स है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अगर देखें तो 13.8 मिलियन फैमिली रन बिजनेस है एंड 10% स्टिल इज ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स या जिसको हम छोटे रिटेलर्स हम बोलते हैं, उनको एक फैसिलिटीज उनका रेपो कस्टमर के साथ बहुत अच्छा है, प्लस उसके बाद डिजिटल उनके पास डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है। अब उनको थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। अब उनको टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना होगा, उनको डिजिटल पे ज्यादा फोकस करना होगा, खुद के वेबसाइट क्रिएट करनी होगी और कंज्यूमर तक उनको पहुंचना पड़ेगा। अगर कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमें कस्टमर के पास चल के जाना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ मेल, चाहे वो मेल से अप्रोच करे, चाहे वो व्हाट्सएप से अप्रोच करे, चाहे वो अपने पोर्टल से अप्रोच करे। हमें वहां पे जाना पड़ेगा और हमारी सर्विसेज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कस्टमर को अगर कोई चीज उसको खरीदनी है तो वो एक के बजाय उसको 10 चीजें, सपोज मुझे एक शर्ट लेनी है तो मैं 10 शर्ट उसके पास लेके जाऊं, उसमें से उसको चॉइस दूं, वो अपना ट्रायल अपने घर पे करे और वहीं पे अपने हैंड डिवाइस से अपने उसको पेमेंट ले लेवे। इसके अलावा भी उसको वो एक रिटेलर को अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए उसको एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल एट द डोर करनी पड़ेगी, ऑल्ट्रेशन फैसिलिटीज एट द डोर करनी पड़ेगी। ये बदलाव अपने कंज्यूमर को लाने पड़ेंगे। जब तक हम अगर ये बदलाव नहीं लाएंगे हमारे बिजनेस को हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो कस्टमर हमारे शॉप में आ रहा है तो अब हमारे सेल्समैन के साथ भी जैसे हमारे एक इंसेंटिव बेस होते थे कि भैया आप ₹1,00,000 का धंधा कर लो, आपका ये इंसेंटिव है। अब उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके केपीआई चेंज करनी पड़ेगी। बाय द वे उसको अभी नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ बिल पे डालना पड़ेगा कि भैया तू 4,000 का बिल करेगा तो तेरा ये कमीशन बनेगा। तो ये चेंजेस अपने रिटेलर लेवल पे भी लाना पड़ेगा ताकि हम अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाए। सी, एक चीज बहुत अच्छी है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। अगर हम अभी से अगर शुरुआत कर ले अपने बदलाव में तो हम अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे। हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चीज है कि 29 स्टेट, 29 डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल एंड डिफरेंट टाइम, हम उसको कैश कर सकते हैं। हमको पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा टू द कस्टमर्स। हम नेगेटिव अप्रोच करके नहीं बैठ सकते। बदलाव बहुत जरूरी है, कस्टमर बिहेवियर बहुत चेंज होगा, हमें कस्टमर से एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, अप्रोच वहां तक जाना पड़ेगा, हमें कस्टमर के डोर स्टेप तक जाना पड़ेगा, जो मैं हमेशा करता हूं। प्लस उसकी टिकट साइज पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सब बदलाव और अगर ये सब चीजें हमने स्वीकार कर ली तो हो सकता है हम अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि ना बिजनेस कम होगा। बिजनेस थोड़े समय के लिए बिजनेस कम हो सकता है। मैच बारिश के कारण मैच में कुछ ओवर कम हुए, मैच कैंसिल नहीं हुआ है। अब ओवर कम हुए तो हमारे पास बहुत शब्द कि हमें रन उतने बनाए, तो हमें बाउंड्री को फोकस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे बिल साइज को फोकस करना पड़ेगा। तो हमारी टिकट साइज अगर बढ़ेगी तो मे भी हम सस्टेन कर पाएंगे। और बट ये है कि अब प्रायोरिटी इज हाइजीन। अपने शॉप को, अपने रिटेलर को, अपने जो उसके कम्युनिकेशन में कस्टमर को ये बताना पड़ेगा अगर आप मेरे शॉप पे चल के भी आ रहे हो तो यू आर सेफ। ये सारे नॉर्म्स आपको जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको कंटिन्यू करके कम्युनिकेट करना पड़ेगा कस्टमर को, तो मे बी हम रिटेलर्स सर्वाइव हो जाएंगे। Amongst us, Mr. B.S. Nagesh, he is one who started organized trade in India, organized retail trade in India, जिसको हम मॉडर्न ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। नागेश जी is a person who has been the man behind building Shop to Stop। रिटेलिंग का जितना इन डिटेल
नागेश जी ने इस कंट्री को विजन दिया है या समझाया है, वो काबिल तारीफ है। नागेश जी, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आज के रिटेल के सीन पर कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज हमसे शेयर करें, और इस सारी डिस्कशन में अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है रिटेलिंग पर तो उस पर भी हमारे साथ शेयर कीजिए। नागेश जी प्लीज। थैंक यू संजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऐसे ऐसे महारथी बैठे हुए हैं तो कोई मिस होने की बात ही नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है ईमानदारी की बात से कि सर वो ये क्रिकेट मैच T20 का नहीं रहा है, अभी ये सारे टेस्ट मैच हो गए। आई थिंक वो बहुत जरूरी है हमको देखना, क्योंकि unless we see this from a long term perspective, it's very difficult for any one of us to survive. And it's also important to look at it कि ये जो कस्टमर बुलाओ रिटेलर जिताओ, ये स्टेटमेंट भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि किसी को जिताना है तो एक को जिताने के लिए दूसरे को हारना पड़ता है, और ये जो हमारा आगे का जो हमारा रिलेशनशिप होगा कस्टमर का, ये हमको एक विन विन रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और जो विन विन रिलेशनशिप है वो टैक्टिक्स या सर्टेन एलिमेंट्स जिसकी बात हुई है उससे नहीं होता है। तो जो हमने अभी बात की सुरक्षा की, सेफ्टी की, हाइजीन की, ये 15-20 दिन में सब ये हाइजीन हो जाएगा। मतलब जैसे आज हम सांस लेते हैं वैसे आज हम में से कितने लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, या इतना खूबसूरत चेहरा मनु जी का, और बताइए उसके ऊपर मास्क पहन के घूमेंगे, तो दिस इज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। So quite a few of these things will become part of life for all retailers, and customer will identify and differentiate between these two before even coming to your store. आज इतना नेटवर्क, इतना मीडिया का है, जिस दिन सारे मॉल खुल जाएंगे सारे मीडिया के लोग छुप छुप के जो है कैमरा लेके घूमेंगे, और आपके कहने के पहले वो मीडिया में डाल देंगे कि इस दुकान में सेफ्टी है, इस दुकान में हाइजीन है, इस दुकान में ये हो रहा है, इस दुकान में नहीं हो रहा है। So I think ये within 15 days to 30 days this will all become normal. The question is that how do we look at 6 to 9 months time? In my opinion, the 9 months are going to be tough, irrespective of the fact that there are festivals. And ये एक reality हमको मान के चलना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, या जितने भी लोग बैठे हैं हम लोग सब इमेजिन कर रहे हैं, सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, पर ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछो तो हम में से किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला। ओके, ये एक एस्टिमेशन है, एक तरीका है सोचने का। सो मैं इस बात से ज्यादा कि बाहर वाले क्या कर सकते हैं, मैं पहले ये बात करना चाहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम मीन्स आई एंड वी। I think as somebody said as a co-panelist, the first thing is to have the positive attitude that we have to take the business from where it is and go through the survival mode in the next 6 to 9 months time. हम में से कोई भी आज घर पे बैठे बैठे बिना दुकान खोले हुए दुकान बंद करने के लिए तो नहीं बैठेंगे, हम सब अपना दुकान खोलेंगे। So first positive attitude is we are going back into business and we are going to take this business to the next step. Second is I think we need to go back and analyze हमारे पुराने कर्म को हमको एनालाइज करना चाहिए। अगर आपके पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल में आपके बिहेवियर आपके कस्टमर्स के साथ में ऐसा रहा हो कि मैं तो अपने आप में बड़ा रिटेलर हूँ, ठीक है, आप कस्टमर आए हो, आप मेरे पर मेहरबानी कर रहे हो, तो इतना गारंटी लेके चलो कि इसके आगे कस्टमर आपको मेहरबानी नहीं करने वाला। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी। सो अ लॉट ऑफ पीपल, जिसको आज हम ब्रांड बोलते हैं, ट्रस्ट बोलते हैं, सो जिन लोगों ने अपना ब्रांड और ये ट्रस्ट बनाया है, आई थिंक दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी द अर्ली विनर्स ऑफ दिस। जिन लोगों को लगता है कि उनका कंपटीशन के बीच में बैठे हुए हैं और अपने दुकान में 4 लोग आते हैं, अगल बगल वाले दुकानों में 10 लोग आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछो ऐसा क्यों होता था और आगे क्या होगा, और ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जिसको कि हमको ठीक करना पड़ेगा। सो बिल्डिंग द ब्रांड ट्रस्ट विद द कस्टमर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आज किसी के पास कोई नुस्खा नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कस्टमर क्या चाह लेके आएगा, क्या डिमांड लेके आएगा और क्या आके मांगेगा। तो जब वो आके मांगेगा उस टाइम तो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या केपीआई बनाना नहीं बैठोगे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द कस्टमर वांट्स। टुडे व्हाट वी आर सेइंग इज ऑल गेस वर्क्स। सो टू मी द सेकंड थिंग आफ्टर ट्रस्ट is to actually ask this question: how loyal are we be going to be with our customers, and how empowered will we make our employees? I think this is very very important. आज के दिन में भी अगर कस्टमर आया है और आप लंच पे गए हो और कस्टमर को कोई जरूरत है और आपका वाला फोन करके बोलता है लाला जी वो कस्टमर ये मांग रहा है, मैं क्या करूं, तो आपका कस्टमर गया। आई थिंक द इम्पोर्टेंट इज हाउ वेल कैन यू एम्पावर योर एम्प्लॉय। हम बात करते हैं ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स, अरे आपके साथ 6 एम्प्लॉय 6 साल से, उनको तो पहले ट्रस्ट करो।
तो आई थिंक इंटरनली बहुत कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा अपने आप में, बिकॉज एक तो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, दूसरा क्या है, अगर मार्केट में जो है डिमांड कम हुआ है तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उसमें जहां आप 4 ग्राहक आते थे शायद 3 आएंगे. सो इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यू कांट think of missing a single customer. Like Hemaji ne kaha, you can't think of missing a single transaction or a single unit sales. I think it is very, very important for us. बात आई ये लॉयल्टी की. हम कहते हैं कि नहीं, हम तो 20 साल से हैं, हमारा फैंटास्टिक ट्रस्ट है, हमारा ब्रांड का तो कोई मुकाबला नहीं है, हमारे इतने लॉयल कस्टमर्स हैं. अभी ये उल्टा हो जाएगा. कस्टमर बोलेगा पिछले 20 साल से मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं बहुत लॉयल था. ओके, अब आप मुझे बताओ कि आप मेरे साथ लॉयल्टी क्या करोगे. So I think we have to look at the elements of loyalty building for the customer. And ये जो loyalty building है ये अगले 5 साल नहीं, ये हर रोज हर ट्रांजैक्शन में होना पड़ेगा. और कैसे होना पड़ेगा? अगर कस्टमर ने आए और बोले कि भाई मुझे अच्छा लग गया, बट मेरे पास डाउट है कि मैं लार्ज दूं या एक्स्ट्रा लार्ज दूं, I don't want to try the garment, can I take 2 and keep a deposit and select one and return back one to you? Well, आपका सेल्स वाला बंदा, आपके सुपरवाइजर शुड हैव द एबिलिटी टू से यस और नो. सो आप ये चीजें सोचो कि हम वहां उस टाइम क्या करेंगे. ओके, बिकॉज ये कस्टमर आपको पता है कि 25 साल से आ रहा है, पर आज जब वो एक एक्स्ट्रा आइटम लेके जा रहा है तो आप सोचोगे क्या करेगा, लेके जाएगा, वापस नहीं देगा. सो आई थिंक यू हैव टू बिल्ड मेनी एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट. लाइक समबडी सेड होम डिलीवरी, यस यू हैव टू डू होम डिलीवरी. समबडी सेड ई कैटलॉग, यस यू हैव टू डू ई कैटलॉग. समबडी सेड ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई जरिया ही नहीं है. यू डोंट हैव अ चॉइस. ओके, यू डोंट हैव अ चॉइस. इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ऑनलाइन वाले, हमारे विपुल भाई की कंपनी उड़ान अगर 24/7 खुली रहती है तो हम लोग को भी 24/7 ही खोलना पड़ेगा. हम लोग अगर मियाँ बीवी दुकान चलाते हैं तो मियाँ दिन में काम करेगा, बीवी बोला रात को फोन के पास बैठे रहो, किसी का फोन आया तो फोन लेना, ऑर्डर लेके डिलीवर कर देंगे. आई मीन दैट्स द रियलिटी, बिकॉज यू कांट मिस योर कस्टमर, बिकॉज द कस्टमर इज शॉपिंग 24/7, then she has time for herself. So I think these things are all going to become very hygiene. What percentage of your business will come from online? What percentage will come from home delivery? I think these are things which will keep changing. The ability to respond to customer is a very, very important factor. Okay, we keep calling कि हमारा बंदा responsible है, हमारा बंदा accountable है. But responsibility is actually the ability to respond to situations. And I think that training is very, very important. आज जब दुकानें नई खुली हैं, आपके बंदे आपके पास हैं, please talk to them. हर बार हर रोज इनको product training नहीं. I think it is important to talk about attitude training. It's important to talk about कि हम लोग सब लोग मिलके कैसे आगे धंधा बढ़ाएंगे. I think that is a very, very important to skill them, empower them and give them the ability to respond. I think that's extremely important. Another important thing is कि business is going to be less, not because the customer doesn't have a demand, but because the environment and the circumstances are going to bring down the business automatically. If the malls are going to operate only one shift, instead of 12 hours, 8 hours a day, तो आपका 1/3 business तो गया. ठीक है. अगर आप बोल रहे हो कि आपको social distance रखना है, तो आप ये लगा लो 50% से 33% वो गया. आपका employee अगर केवल 50% आ सकता है, तो इसका मतलब कि 1 and 2 सर्विस जो है आप नहीं कर पाओगे, तो उतना एक्सपीरियंस कम हो जाएगा. So if you look at each of these elements, और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम alternate day कर देंगे, ओके, ऑड इवन कर देंगे, तो एक 25% और कम हुआ. So the demand is going to come down. Now when the demand is going to come down, हम ऐसे पैनल में तो बोल सकते हैं कि कस्टमर बुलाओ, रिटेल जिताओ, कैसे बढ़ा देंगे, but the reality is your demand is not going to be in full time. पिछले 4 हफ्ते में यूरोप में, यूएस में, जहां भी दुकानें खुली, एशिया में, कुछ जानकारी जो मेरे पास है उसके हिसाब से जितने भी हमारे कपड़े के व्यापारी हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एवरेज इज बिटवीन -35 to -65%, ओके, कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो आप ये लगा लो, 50% लगा के चलो, आप ये लगा के चलो कि इफ यू आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस ऑफ बिटवीन -25 to -50%, और ये मैं साल की बात कर रहा हूँ, ये पहला क्वार्टर तो निकल गया, अप्रैल में तो हम लोग निकल ही गया. तो ऐसे माहौल में हम क्या रेवेन्यू करेंगे अगर सर्वाइवल के लिए, या ऑल्सो वी विल लुक एट आवर कॉस्ट, लुक एट आवर स्ट्रक्चर, एंड वहां पर हमको रियल बनना पड़ेगा. ओके, आपको अगर रेवेन्यू, चलो मैं एक पेसिमिस्टिक और कंजर्वेटिव आदमी हूँ, 30 साल से धंधा चला रहा हूँ, अगर आप में से कोई एग्रेसिव है, पॉजिटिव है, तो ठीक है, आप मान लो कि आपका सेल 25% कम हुआ, तो आप 25% कम सेल जो है 100% पुराना किराए पे, 100% पुराना सैलरी पे, 100% पुराना खर्चे पे आप चला सकते हो, और रिटेल जैसे बिजनेस में आप सर्वाइव कर सकते हो, नहीं सर्वाइव कर पाओगे. तो आई थिंक ये रियलिटी को आपको लेके आना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
The next important part is कि अगर आप इतने ही लोग हो तो how can we do multitasking? आज क्या हो गया, हम लोगों ने रोल बना दिया है, ये साड़ी बेचेगा, ये बेचेगा, ये वो बेचेगा, ये अच्छा है, ये ये रिसीवर है. That's gone. I think we will be working with less number of employees and we will have to learn to do multitasking. So अब हमारे अभी जैसे हम में से कितने लोग हैं, हम लोग तो सब लोग बोलते हैं कि पिछले 2 महीने में हमने बर्तन भी किया, झाड़ू भी किया, पोछा भी किया और घर का सामान भी बनाया, खाना भी बनाया. तो हम लोग का ये मल्टीटास्किंग कहाँ से आ गया? हम तो अपने आप को बड़ा बड़ा सीईओ चेयरमैन समझते थे, अभी सब कुछ हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. तो द क्वेश्चन इज कि हम घर पे मल्टीटास्किंग करने को तैयार हैं, जैसे ही दुकान में जाएंगे तो अपना अपना रोल संभाल लेंगे? नहीं. I think everybody has to start looking at multitasking in shops. Okay, I can be a cashier today, I can be a housekeeping guy. I don't think the industry can now afford a separate housekeeping and a separate salesperson. No. So you will have to look at very, very different way of doing our business. अभी जहां तक सेल की बात है, अगर आप बोल रहे हो कि सेल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने यूनिट मेंटालिटी से कस्टमर के वार्डरोब और लाइफस्टाइल और फैशन मेंटालिटी पे जाना पड़ेगा. You have to come away from the fact that you are trying to sell him one jeans or one pair of shorts or one pair of t-shirts. You have to start looking at the customer and say what are the needs that he has. Okay, maybe आज अगर आप देखो, मैंने सर्वे नहीं किया है, but if you do some survey, मेरा सेंस है कि बहुत से कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इतने जिंदगी में इतने बार अपना वार्डरोब नहीं खोला है. तो पिछले 2 महीने में वो वार्डरोब खोल खोल के थक गए. उनको एग्जैक्टली पता है कि इनके वार्डरोब में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है. तो अगर आप उनके पास जाके बोलो कि आपके वार्डरोब में से कोई चीज एक्सचेंज करना है, आपके वार्डरोब में से कोई चीज आप किसी और को देना चाहते हो, बिकॉज आज के दिन हमारा इमोशन भी सबसे हाई है. वी आर सीइंग माइग्रेंट वर्कर्स, वी आर सीइंग पुअर पीपल, वी आर सीइंग पीपल इन डिस्ट्रेस. हम तो अपने आप में बहुत फॉर्चुनेट हैं कि घर पे बैठे हैं, खाने पीने की तकलीफ नहीं हुई है. तो आज मार्केट में, ह्यूमैनिटी में, कम्युनिटी में इमोशंस, कंपैशन बहुत ज्यादा है. तो ऐसे टाइम में यू तो ऑल्सो थिंक कि क्या मैं अपने कस्टमर की मदद कर सकता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, इतना लोग कभी बिस्तर को यूज नहीं किया लोगों ने, ओके, बिकॉज घर पे ही बैठे थे सब लोग, तो शायद नए बेडशीट की जरूरत पड़ेगी. तो अगर आपके कस्टमर है, उनके लिए आप स्पेशल बेडशीट का एक ऑफर दे दो. आप बोलोगे मैं तो कपड़े की दुकान बनाता हूँ, शर्ट्स और ट्राउजर्स बेचता हूँ, मैं बेडशीट्स का क्यों करूँ? नहीं, आप बेडशीट के धंधे में नहीं आ रहे हो, आप कस्टमर्स को बोल रहे हो हमारे कस्टमर है सर, मैंने एक बेडशीट का बहुत अच्छा डील किया, आपके लिए मैं बेडशीट का डील लेके आया हूँ. This is not changing of category. This is being part of a customer. So there are lots of such elements that we have to think of. आज पूरी दुनिया नॉर्डस्टॉर्म की बात करती है, पूरी दुनिया नॉर्डस्टॉर्म की सर्विस की बात करती है यूएस में, और हर कोई वही एग्जांपल देता है. शायद 20 साल पहले था कि वो टायर तो बेचता नहीं है नॉर्डस्टॉर्म, बट किसी कस्टमर के लिए उन्होंने टायर भी मंगा के दे दिया रिप्लेस करने के लिए. But what was that? It was being with the customer. The last thing that I want to say is that with the customer, now you can't look at all the customers as one, because जो consumer behavior जो राकेश जी ने बताया है, there's a huge amount of change which is going to come, and some changes because of internal, some changes because of the 50-60 days of habit formation, some changes are because of social pressures and community pressures. So let me take this in 3 buckets of customers that I see. Below 18 years जो हमारे youngsters हैं, ये बहुत ही ज्यादा अवेयर हमारे कस्टमर्स हैं. ओके, ये वो कस्टमर्स नहीं हैं जो कि जेन जी के who would want to spend a lot because they are more connected to nature, to environment. So these customers' behavior will be very different. They are going to tell your parents, see, I always told you there's no point in spending so much money on the garments. Why do you require that? Okay, that's one social pressure. Okay, their behavior will be very, very different. So they would want to see responsible retailing from all of us. What is responsible retailing? Are you doing something for the community? Okay, are you doing something for the nature? Are you doing something for the ecosystem? This is how they are going to look at it. There is a 22 to 35 customer, 45, who's a core customer, okay? I think suddenly they've realized that what these kind of things can do, because this is the first time they are seeing these kind of challenges. See, many of us here have seen at least 3 or 4 these challenges in a career of 30 to 40 years, but many of them have not seen these challenges. So I'm seeing that there would be withdrawals in terms of spends. They have their EMIs, okay, but they are not going to change their lifestyles. So they will continue to do their lifestyle. Maybe instead of 5, they'll buy 4, but they would definitely like to go to people who understand them, who are willing to support them, whether it is from fashionability or from value creation. It could be either of them, I don't know. These are also the people who are very much online, very much tech adopted. So these are the people who would love to deal with
show stores who are online, offline, home delivery, every possible aspect that they're doing. Next is the customer who's between 45, 50 to 60, 65. This is a customer who had a lot of money, has come out with all the responsibilities and is willing to shop. Yeah? But this customer is getting pressure from all over the place. Pressure from the government, all government notifications says people above 50 don't go out. Okay. The families are saying, dad, mom, please don't go out. Okay. So there are these things, and India is the diabetes capital of the world. So if you are, they're also saying if you have a diabetic or a heart, okay, then don't go because you may get COVID impacted. So I'm saying the dealing with these three sets will be very different. So अगर आपका कस्टमर किसी एक सेगमेंट का है तो उसको समझ के उसके हिसाब से अपना धंधा, अपना कैटेगरीज और धंधा करने का तरीका बदले. अगर आपके पास हर तरह के कस्टमर्स आते हैं तो इनके साथ डील करने का तरीका आप बदल लो और ये समझ लो internally. And that's why I said when you talk to people, responsibility, okay, maybe you would want to tell your people कि अगर फैमिली आ रहा है और 50 से ऊपर के कुछ लोग हैं, 25 से 50 के साथ में बच्चे हैं, तो उनके साथ में कैसे डील करो. You can't deal in the same way with all the three segments of people, even if they are inside. Okay. अभी जैसे हेमंत भाई ने बोला या मनु ने बोला कि सबके पास में जो है हमारा डेटाबेस है. अगर आपके पास डेटाबेस है तो दुकान खुलने का, पूरा मॉल खुलने का क्यों वेट कर रहे हो? आप में से कितने लोगों ने पिछले 2 महीने में अपने कस्टमर के बारे में पूछा? हम लोग आपस में दोस्त एक दूसरे को व्हाट्सएप भेजते हैं, आई होप यू आर वेल, यू आर सेफ, योर फैमिली इज फाइन एंड एवरीबॉडी इज फाइन. ओके, हाउ मेनी टाइम they are, how safe they are, okay, how is their family, आपके घर में आपके पिताजी हैं वो कैसे हैं. अगर नहीं किया है तो वो करो, because that is where the trust and bond will build. So मुझे ये environment से निकलने का जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी या साइंस या बहुत डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दिख रहा है. मुझे सिंपल ह्यूमन रिएक्शंस ही दिख रहे हैं. अगर आपके सिंपल ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिएक्शंस के तरीके हैं धंधे के, अगर उनको वापस लेके आओ, and जैसे विपुल ने कहा, for your customers, for your employees, for their families, everybody. So now everybody is thinking about their employees. Selfishness देखिए, हम सब बोल रहे हैं हमारा एम्प्लॉय आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे. हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा एम्प्लॉय जो है 150 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट में घर में 5 लोगों के साथ में रह रहा है. तो अगर आप इतना ही सोच रहे हो उसके बारे में, तो एक बार ये देखो कि उसके फैमिली के लिए आप क्या करोगे. आप अगर एम्प्लॉय को आप बड़ा ही हाइजीन फैक्टर में लेके आ जाओगे, सैनिटाइज कर दोगे, पर उसको फैमिली एनवायरनमेंट में वैसा नहीं है, तो आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो. सो आई थिंक वी हैव टू गो स्लाइटली आउटसाइड आवर सर्कल इन टर्म्स ऑफ आवर थिंकिंग, एंड आई थिंक विद मेनी ऑफ दीस थिंग्स शुड बी डिफरेंट. बट आई वांट टू बी वेरी रियल. 9 months are tough. We have to survive. Cut whatever costs you can cut. Get every penny that you can get from the customer. Don't sit at your home. ये मत बोलो कि कस्टमर बुलाओ. मैं तो बोल रहा हूँ कि आप दुकान के बाहर ही खड़े रहो. ओके, और घर पे जा सकते हो तो घर पे चले जाओ. ओके, कस्टमर को साथ लेके वापस लेके आओ साथ में, और फिर उनका जो है उनके साथ में धंधा करो. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, एंड आई एम सीइंग विनर्स विल बी द वन हु कैन डिलीवर एक्सपीरियंस ओवर एंड अबाउट दिस सैनिटीज. ये जितने भी सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं ये सब 1 महीने में बराबर हो जाएगा. उसके बाद द क्वेश्चन इज एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज नो मोर द शॉपिंग एक्सपीरियंस कि हम दुकान में क्या कर रहे हैं. Experience will be the lifestyle experience, the life experience that we are going to have with our customers, and I think that is what is going to be the big difference. So my closing word will be: build life experience with your customer. You are in tough time, she's also in tough time. Don't forget, you are not the only one who are in tough time. So together, if you can come out of this 9 months, you are winners for the future. एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है. MG मोटर्स इंडिया कंपनी ने एक प्लान किया है कि दे वांट टू इंट्रोड्यूस ए कॉन्सेप्ट ऑफ योलो, यू ओनली लिव वंस. सो दे आर ट्राइंग कि हम अपनी कार को, लग्जरी कार को इस कॉन्सेप्ट पर बेचने की कोशिश करेंगे, जो हम हिंदी में बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो एक प्रीमियम कस्टमर है जो समझता है कि इतना टफ टाइम देखा है तो अभी what to save money for, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर खरीदने जाएगा. तो आपको लगता है कि ऐसा कोई इम्पैक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा या फिर फैशन में ऐसी कोई चीज वर्क सकती है? देखिए, the difference in a car and an automobile is that at least in India the cycle of automobile buying is once in 10 years, once in 7 to 10 years. Yeah, so their interaction is one, and हम
कार खरीदने के पहले या बेचने के पहले कस्टमर के साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं। उस टाइम हम उनको सारी दुनिया की जो उनके ड्रीम्स बताते हैं। उसके बाद हमारा जितना भी इंटरेक्शन होता है वो ट्रबल इंटरेक्शन ही होता है। जब तकलीफ होती है गाड़ी में, हम सर्विस सेंटर में जाते हैं, तभी हमारे साथ इंटरेक्शन होता है। अपैरल है, फैशन बिजनेसेस है, वी आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर बिटवीन 4 to 9 times or 10 times। सो हमको जो आपने बताया ना योलो, हमको तो वो योलो मूवमेंट उनको हर बार करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि जो आज हम जी रहे हैं ऐसा सोचो कि आज ही आखिरी दिन है और पूरा पूरा मजा कर दे। तो वही इसीलिए बोल रहा हूँ, वो लाइफ एक्सपीरियंस की जो बात कही ना, so what is that life experience? And the life experience is different every day. Okay, if the customer संजय जी मॉर्निंग में आप आओगे तो आपका एक्सपीरियंस दूसरा होगा, दोपहर को दूसरा होगा, रात को दूसरा होगा। तो क्वेश्चन इज माय एबिलिटी टू एक्चुअली डू दैट। और इसका सबसे अच्छा तरीका है इफ यू आर एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद द कस्टमर, ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दैट्स द वे ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट। अभी हम गुरु मंत्रा पर आते हैं। मैंने आज के टॉपिक की शुरुआत इंडस्ट्री के चक्र से की, चक्कर नहीं बोलूँगा, चक्र से की। अब तक हमने बहुत कुछ रिटेल के बारे में डिस्कस किया और जाना। रिटेल इस इंडस्ट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है। जैसा कि हमने समझा कि अगर रिटेलर के यहाँ सेल्स और बिक्री शुरू होगी तो ही इंडस्ट्री का फुल साइकिल कंप्लीट होगा। Like last time, we have Ramesh ji, Chairman and Managing Director CRM with us. Ramesh ji, please share your Guru Mantra, जिससे हमें इस बिजनेस के साइकिल का और हमारे छोटे व्यापारियों के एंगल से कुछ समझ आए कि क्या किया जा सकता है। देखिए, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है और नागेश जी इतने एक्सपीरियंस, इतनी चीज़ें बताने के बाद फिर ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो 3-4 बातें मुझे ध्यान में है। देखिए, एक तो सबसे पहले ये तो मान ही रहे हैं हम कि ये बहुत ही एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है और इस सिचुएशन को अब हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब हम 2 महीने से घर में भी थे। अब सभी को ये चिंता है कि जब दुकानें खुलेगी तब क्या करेंगे। तो एक तो देखिए, ये रिटेलर को जिताओ आपका जो स्लोगन है वो तो हमको जिताना ही है, लेकिन इसको जिताने के लिए अगर इस अपने पूरी थीम को हम 50 ओवर की मैच समझ लें तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट 15-20 ओवर में कुछ होने वाला नहीं है, आपके रन्स बनेंगे नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, थोड़ा पेशेंस रखना होगा और संभल के रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन हम जीतेंगे इसलिए क्योंकि हमारी अपोनेंट टीम भी कमजोर है। तो हमको थोड़ा ये साल पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये साल में से 3-4 महीने हमको निकाल देने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में जो हमारे सप्लाई चेन का पिरामिड है, ये पिरामिड में जो हमारे रिटेलर्स हैं, छोटे रिटेलर्स, वो सबसे नीचे बेस में आते हैं। और मेरा एक ऐसा मानना है कि ये लोग हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़ी कड़ी हैं और बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये 400, 500, 1000, 1500 फुट के जो हमारे रिटेलर भाई हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इफेक्ट पूरी सप्लाई चेन में सबको होगा और सप्लाई चेन के टिप में जो लोग हैं, उसके नीचे थोड़े से लोग हैं, उनको ज़्यादा होगा, इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। फॉर्चुनेटली जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री बेस है उनको इफेक्ट होगा, लेकिन कम होगा। फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ मैं। अब ये सेल जो कम होने वाला है वो उसका इफेक्ट तो सभी को होने वाला है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हमारा सेल बढ़े कैसे। तो हम लोगों ने मैं कम से कम लास्ट 15-20-25 दिन में 7-8 हज़ार रिटेलर से मिला हूँ। बहुत सारे लोगों से हमने 1-to-1 भी बात की है। तो ये टिप पर जितनी तकलीफें लोगों को दिख रही है, छोटे रिटेलर से जब बात कर रहा हूँ तो इतनी घबराहट उनको नहीं दिखती है। ये टिप पर ज्यादा घबराहट दिख रही है, उससे नीचे के एक स्टेप पे ज्यादा घबराहट दिख रही है। आज मेरी एक चेन्नई के रिटेलर से बात चल रही थी, तो उसने कहा कि मेरी 5 दिन पहले से दुकान खुल गई है और मैं अपॉइंटमेंट से लोगों को बुला रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो एवरीडे 4 कस्टमर आ रहे हैं और मेरे पास बिजनेस हो रहा है। और ही वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव। और भी छोटी जगह के कई रिटेलर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो घबराए हुए तो हैं वो लोग। घबराए हुए इसलिए है कि 4 महीने 3 महीने कुछ काम उनकी दुकान खुली नहीं है और नेक्स्ट 2-2.5 महीने में भी उनको भी पता है कि सेल ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो वो ये तो बात सही है अभी नागेश जी ने जो बताया कि सैनिटाइजेशन और दुकान को कोरोना फ्री, तो मेरे ख्याल से अभी इतने मटेरियल अवेलेबल हैं कि सभी लोग करेंगे ही करेंगे। और कस्टमर को किस तरह से वेलकम करना है, आते ही उनको मास्क देना है
तो ये तो मेरे ख्याल से एक रूटीन चीज हो जाने वाली है, तो ये तो हमारे छोटे रिटेलर भी कर लेंगे। अब उनको कस्टमर को कैसे बुलाना, और कस्टमर कम विजिट करेंगे ये भी बात पक्की है। तो हम लोग सोच रहे थे, एक दो आईटी कंपनी से बात कर रहे थे कि आप एक छोटे रिटेलर के लिए जो 500 स्क्वायर फीट की शॉप लेके चलता है, जिसको लैपटॉप भी खोलना नहीं आता है, वो अपना एक छोटा ई पोर्टल ई कॉमर्स कैसे चालू करे, उसके लिए हमको आप एक छोटा सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ। छोटे रिटेलर के लिए जो सिर्फ कंप्यूटर नहीं चलाना जानता है लेकिन मोबाइल जानता है, ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे कितने ही लोग मिलेंगे। तो उनके लिए आप हमको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ। तो हमारी पूरी आईटी टीम अपना उन लोगों के साथ में मिलकर के एक बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे आपकी छोटी दुकान में छोटे लोग जो आईटी ज्यादा समझते नहीं हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए अपना एक छोटा पोर्टल तैयार कर सकते हैं। ये जब हो जाएगा तो मैं हमारी पूरी इंडस्ट्री की टीम के साथ में शेयर करूंगा। अगर ये चीज सक्सेस हो गई एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, और उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी मेरा जो सोचना है कि देखिए, हमको एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म के तरीके से सोचना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो आप कितना भी हाथ पांव मार लो, बहुत ज्यादा कुछ हम अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अभी ये 2 महीने जो बचे हैं, नागेश जी ने बहुत सारी बातें जो मैं करना चाह रहा था वो नागेश जी ने कर ली। तो ये शॉर्ट टर्म में जो 2 महीने बचे हैं, ये 2 महीने में हमने घर में बैठ करके क्या किया, या हमारे छोटे, देखिए मेरा एक ऐसा मानना है, मैं इतने लोगों से, मैं 4000 रिटेलर्स से 1 to 1 मिलता हूँ पूरे साल में, और मुझे बराबर पता है कि उन लोगों की क्या तकलीफें हैं और वो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं और कौन सा वहाँ पर और थोड़ी सुधारे की जरूरत है। तो मेरी कई लोगों से बात हुई कि वो ये 2 महीने में अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अभी तक ये गलतियां की थी, लेकिन हमारी ये गलतियां अलाउड थी क्योंकि ऐसी कोई नौबत आई नहीं थी, बट आज के दिन ये गलतियां अलाउड नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारी रिटेल की दुकानों में स्टॉक के सामने टर्नओवर, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, सबके नहीं, 10% लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जनरल रिटेलर 2-3 से ज्यादा टर्नओवर नहीं करता है, विच इज वेरी वेरी लो। तो अगर वो उस चीज के ऊपर अभी प्लान करे कि मेरे आने वाले समय में मुझे ये 15 ओवर के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बैलेंस 30 ओवर में मुझे अपने काम को ज्यादा बढ़ाना है, तो मैं अपनी एफिशिएंसी को कैसे सुधारूं, मेरे स्टॉक टर्नओवर को कैसे बढ़ाऊं, मेरे पास में अगर कोई 6 महीने 12 महीने 1 महीने साल का पुराना माल है, उसको जल्दी से जल्दी कैसे निकाल दूं, और उसके बाद में आगे समय में मैं होने ही नहीं दूं उसको ज्यादा। जैसे ही कोई माल 6 महीने 4 महीने पुराना होता है, कोई भी अपने दुकान के हिसाब से वो कर ले, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी सेल्स में कैसे निकालूं। तो एटलीस्ट हम नेक्स्ट 20-30 ओवर्स जो बचेंगे उसके लिए अच्छा एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन तो आप कितना भी शॉट लगाने की कोशिश करो, शायद क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो ये जरूर रन तो बनाने हैं हमको, ऐसा तो नहीं है। तो जो हमारे कस्टमर्स आ सकते हैं उनको बुलाना है, और इस तरह का कोई ऐप, जैसे कई लोगों ने, हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने बताया कि अपना कोई एक व्हाट्सएप के थ्रू अपने जो हमारे नॉन कस्टमर्स हैं, खुद का वेबसाइट बनाना तो छोटे डीलर्स के लिए बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन एक व्हाट्सएप के थ्रू अगर वो अपने सब नॉन कस्टमर्स को अपने पिक्चर्स लेकर के भेजते हैं, कोई इस तरह की चीजें बन जाती है, तो आप उनको दूर बैठ करके ऑर्डर ले सकते हैं, या और कुछ इस तरह की चीजें जो मैंने बताया हम कोशिश कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए काम आएगी, अपने छोटे रिटेलर्स के लिए काम आएगी। और पेशेंस तो रखना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि डर तो सबके मन में है, कंज्यूमर के भी मन में डर है और सारे ही लोगों के मन में डर है। हमारे बहुत से भाइयों ने बिल्कुल सही कहा कि हमको खुद को भी बचाना है, हमारे स्टाफ को भी बचाना है और कंज्यूमर को भी बचाना है। तो लेकिन नागेश जी ने एक बात बहुत सही कही कि थोड़े दिन के बाद में हमको ये तो बीमारी कोई एक ऐसे, जब तक इसकी दवा नहीं निकलेगी, जाने वाली नहीं है, तो इसके साथ में ही जीना पड़ेगा। तो हमको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, जो अपना सेफ्टी नॉर्म्स आ जाएंगे। दूसरा एक चीज हम लोग अभी कई दिनों से बात कर रहे हैं, एक वर्ड है कंट्रोलेबल और एक नॉन कंट्रोलेबल। अभी आज की स्थिति में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप कितनी भी चर्चा कर लो, होने वाली तो है नहीं। तो इसलिए जो हमारे कंट्रोल में है, आज के दिन हमारे कंट्रोल में क्या चीज है कि हम हमारे फ्यूचर को प्लान करें, हमारे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हम कस्टमर को कैसे लाएं, हमारी जो इनएफिशिएंसी अभी तक हम कर रहे थे पूरी सप्लाई चेन में, उसको कैसे ठीक करें। तो ये सब चीजें करेंगे तो एटलीस्ट 3 महीने के बाद में हम, हो सकता है कि जो ये गैप अभी हमको लॉस होगा या सेल का लॉस होगा, वो तो होगा। इस चीज से, ये सच्चाई से तो हम दूर नहीं जा सकते।
ये तो होने से हम थोड़ी एफर्ट्स करके थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे सेल, लेकिन 2-3 महीने का पेशेंस तो रखना होगा। और दूसरी एक अच्छी बात ये है कि हमारी शादियाँ कैंसिल नहीं हुई है, शिफ्ट हुई है। तो हो सकता है कि दिवाली के बाद शादियाँ भी है और फेस्टिवल भी है, हम पॉजिटिव रहते हुए सोचें कि उस वक्त शायद कस्टमर ज़्यादा आएंगे और उस वक्त के लिए हम अपने आप को पूरा प्लान करें और तैयार करें। सो मेरे ख्याल से तो हमारा ये जो वक्त हमको मिला हुआ है, घर में बैठे हैं, हमको शांति से नहीं बैठना चाहिए। नागेश जी ने बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और हमारी कंपनी के सारे लोग मेरे ख्याल से सुबह 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक बिजी हैं। दे आर टॉकिंग विद देयर कस्टमर्स, सप्लायर्स, सब लोगों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है और एक क्वालिटी टाइम है, और सब फ्री हैं आपके साथ में, नहीं तो हमेशा बिजी रहते हैं। तो हमारे रिटेलर भाइयों को भी अपने कस्टमरों के साथ में बात करनी चाहिए, उनके पास काफ़ी टेलीफोन नंबर्स है, सब कुछ है, रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और उसके बाद में हमको 2-3 महीने के बाद में जो चीज़ें मिलेगी, जो ओवर्स मिलेंगे बैलेंस, उसमें ज़्यादा रन हम कैसे बनावे उसके लिए तैयार करना चाहिए। और बाकी तो थोड़ा पेशेंस रखने से काम हो जाएगा। और बाकी तो सब चीज़ें हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने बहुत अच्छे से बताई है, सारी चीज़ें बहुत वैलिड है। कस्टमर को बुलाने के लिए सर्विस ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा हमको, और अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। जो जिस तरह से हम अभी तक अपने कारोबार को चलाते थे, मेरे ख्याल से, देखिए नागेश जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग हमेशा जब बात करते हैं तो एफएमसीजी की सप्लाई चेन को हमारा एक आइडियल सिस्टम बताते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम एफएमजी के सप्लाई चेन से बहुत दूर है। हर स्टेज में भयंकर इनएफिशिएंसी है, हर स्टेज में दुनिया भर का स्टॉक है, पेमेंट लेट है, हम 4-4 महीने के उधार देते हैं, साल में 4 बार, 2 बार, 3 बार, पता नहीं कितनी बार ये सेल पीरियड लगाते हैं, यूएसएसआर लगाते हैं। तो देयर आर सो मेनी एरियाज कि जिसमें हम सारी सप्लाई चेन के सारे लोग थोड़ा सा योगदान देकर के अगर एफिशिएंसी को बेटर करते हैं, तो हम जेन्युइनली कंज्यूमर जो हमारा फाइनल राजा है, उसके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट, थोड़ी कॉस्ट कम कर सकते हैं उसके लिए, जो कॉस्ट हमारी इनएफिशिएंसी में जा रही है। तो हमारे रिटेलर भाइयों से भी ये है कि आपके भी ऑफिस दुकान में अगर कुछ इनएफिशिएंसी हो रही है, देखिए सबकी नहीं हो रही है, मैं तो कभी भी नहीं बोलता हूँ, 10% लोग ऐसे हैं कि जिनसे बहुत उदाहरण लिया जा सकता है। कल ही मैं जालान जी को, भागीरथ को सुन रहा था, वो 10 रोटेशन करते हैं अपनी दुकान में, विच इज सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन वो 10 रोटेशन टेक्सटाइल में करते हैं, गारमेंट में करते हैं। तो अगर हम कैसे हमारी इनएफिशिएंसी को एक स्लोली उसका प्लान बनावे, और प्लान बना करके अगर हम उसको आगे ठीक करते हैं, तो एटलीस्ट हम 4 महीने के बाद वाले पीरियड को बेटर कर लेंगे। और बाकी तो सब बातें हमारे पैनलिस्ट भाइयों ने कर ही ली है, इसलिए उन सब चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नागेश जी की बातों से मैं बहुत सी बातें मैंने सोच रखी थी, उन्होंने बोली थी, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बातें। ये सब चीज़ें अगर हमारे रिटेलर भाई करते हैं तो थोड़े दिन के बाद में सवेरा तो फिर होगा ही। किसी अंधेरे की और रात की इतनी ताकत नहीं है कि सवेरा नहीं होने दे, तो होना ही है, कभी ना कभी होना ही है। I wanted to say कि ये also मौका है जब we can collaborate with complementing retailers. So आज अगर हम एक रोड में हैं और हम विमेंस गारमेंट बेचते हैं, और बगल में कोई अगर चिल्ड्रन गारमेंट बेचता है, उसके बगल में कोई मेंस गारमेंट बेचता है, तो अगर ये तीनों लोग मिल के काम करें तो बहुत सा कॉस्ट भी कम हो जाएगा और ये कस्टमर सर्विस भी बढ़ा सकते हैं। और अगर तीनों लोग मिल के कुछ वैल्यू क्रिएट करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द टाइम टू कोलैबोरेट। जिनको कि हम कॉम्पिटिटर समझते थे अपने दुकान के बगल वालों को, उनको हमको अपना कोलैबोरेटर बनाना पड़ेगा और कोऑपरेट करके हमको काम करना पड़ेगा। The question he was trying to ask Nagesh is impact of e-commerce business on physical retail, because as the experience is, China is the first country to come back up and running, and there it has been touted that e-business has sprung up, has bounced back much before the physical retail. Over to Nagesh, how will you like to color this question? So I would like to give some evidence before answering this question. The world's most advanced e-commerce country, US, I think the share of online retailing is about 15 to 17%. UK, where you have players like John Lewis and others, again, the e-commerce is around the same. China is probably the only country where it is 25% plus. So if you look at around the world, the most advanced countries have seen between 15 to 25%. India is in the region of 2 to 3% if you look at overall. And if you look at apparel, maybe it is on the higher side, 10 to 12%. So there are two ways to look at it. हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो वो 10% की तरफ देख के हम रोते रहें कि हम ई-कॉमर्स नहीं कर पा रहे हैं, ई-कॉमर्स नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम उस 90% की तरफ देख के करें
कि हम कैसे अपना शेयर बढ़ा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ई कॉमर्स में मत जाओ. Like I told in my talk that it is inevitable. Okay, anybody who thinks that he doesn't want to be omni-channel, not online, not deliver, is not going to survive. So you may have to have 1, 2, 3, 4, 5, 10% option available for customers to shop online. But it is not true that e-commerce will eat away the business, because e-commerce players are also wanting to make money. Between the 5th and the 7th year, I think the investors are going to ask them questions as to, friend, when are you returning some of our money? Okay, everybody is not going to see a Flipkart, Walmart deal happening. These are all once in a lifetime deal. So let's be very clear, these guys will be held accountable. So ये जो हम सोच रहे हैं कि predatory price से जो है ये दुनिया जीत लेंगे, वो नहीं होने वाला है. But हम ये भी रजाई सर पे ओढ़ के सो जाएं कि ऑनलाइन नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा, वो भी नहीं होने वाला. So अगर आप ऑनलाइन में नहीं हो, प्लीज गेट इन. और टुडे यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ. सी आज के दिन का ब्यूटी क्या है कि चाहे हमारे विपुल भाई हो, चाहे शॉपेक्स हो, चाहे मार्केट प्लेसेस हो, ये लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक यू गो ऑनलाइन. सो आपको तो कुछ खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है. कुछ लोग तो आपको पैसा भी देंगे कि आप ऑनलाइन हो जाओ, उनके साथ में जुड़ जाओ. सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टुडे, एंड ऑल रिटेलर्स, ऑल ब्रांड ओनर्स, प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होगा कि कोई आपके ऊपर पैसा लगा के, खर्चा करके, डिस्काउंट देके आपका धंधा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. अरे आप तो दोनों हाथ खोल के उनको वेलकम करो और अपने समझ के हिसाब से आप ऑनलाइन में भी जाओ एंड प्लस ऑमनी चैनल भी बनो. देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम बीइंग ऑमनी चैनल. इसी से एक मेरा क्वेश्चन है रिटेलर के बिहाफ में, छोटे रिटेलर के बिहाफ में. श्योर, आई थिंक ही विल गिव परफेक्ट आंसर. एक छोटे हमारे जो रिटेलर भाई हैं, उनके मन में ये है कि उनको सबने अच्छे से समझाया है कि आप ई कॉमर्स में जाइए, लेकिन एक छोटा रिटेलर जिसके पास में एक सेट माल रहता है, 1 to 2 ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास शर्ट रखा हुआ है अगर है, तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाएगा, जब ऑर्डर आएगा तो उसके पास रहेगा ही नहीं. तो वो किस तरह से करे अपने जो उसके पहचान के कस्टमरों से कि वो ये तरीके को यूज़ भी कर सके और वो सप्लाई भी कर सके, बिकॉज उसके पास कोई इतनी इन्वेंट्री तो है नहीं. सर रमेश जी, ऐसा है कि आज के दिन में हमको दो चीजें देखना है. हाउ टू एंश्योर दैट यू सर्वाइव एंड मेंटेन द करंट बिजनेस विथ योर करंट कस्टमर्स, एंड सेकंड इज हाउ डू आई गेट अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स आउटसाइड माय करंट कस्टमर्स. तो जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन हमको नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए. मैं बोल रहा हूँ नहीं, पहले तो आपको ऑनलाइन अपने जो कस्टमर जो आप लूज कर रहे हो 5, 10, 15% उनके लिए करो. तो उनके लिए तो आपके पास एक सेट से ही चल रहा था, आपको 2 सेट तो आपने मंगाया नहीं था, पहली बात. दूसरी बात क्या है कि अभी बहुत से ऐसे जगह है, ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे हैं जो कि वो आपको एक इंटरमीडिएरी बना रहे हैं. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट एम्प्लॉइज का है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है रेंटल का है. तो कुछ जगह पर आप इंटरमीडिएरी बन के उनका जो आपका जो रेंज है वो बढ़ा लो. अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का दुकान है और 1000 स्क्वायर फीट में आप 200, 300, 400, 500 सेट्स रख सकते हो सब मिला के, तो आप उतना ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो. तो इफ यू कैन एक्चुअली जॉइन हैंड्स विद एन ऑनलाइन प्लेयर, ओमनी प्लेयर, तो सडनली आपके कस्टमर को आपके फिजिकल में 200-300 सेट मिलेगा, प्लस आपके ऑनलाइन में 500 से 1000 से 5000 एक्स्ट्रा सेट मिल जाएगा. तो ऑटोमेटिकली आपका रेंज बढ़ जाएगा. तो चांसेस आपका कस्टमर आपसे जाने का कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर आपके पास वो सेट के लिए नहीं आता है, कपड़े के लिए नहीं आता है, वो आपके रिलेशन और सर्विस के लिए आता है. आज जो 500 स्क्वायर फीट की दुकान है वो कभी भी 50,000 के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएंगी. आज जो 50,000 स्क्वायर फीट के हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर चलाते हैं, किसी भी हालत में हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से उनके रेंज पे कम्पीट नहीं कर सकते हैं. हम उनसे कम्पीट करते हैं कन्वीनियंस पे, हम उनसे कम्पीट करते हैं एक्सपीरियंस पे, हम उससे कम्पीट करते हैं रिलेशनशिप पे, और हम उनसे कम्पीट करते हैं ट्रस्ट पे. तो अगर हम इन 4-5 चीजों को ले तो मुझे तो लगता नहीं है कि 500 स्क्वायर फीट वाले को तकलीफ है. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर कपड़े में ही लगे रहो. अगर कुछ नए ऑप्शंस आ रहे हैं तो प्लीज लुक एट न्यू ऑप्शंस, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट वे टू लुक एट इट. कभी कभी हम लोग जो है ना इतने फंस गए हैं कि जनरेशन से बोलते हैं हम जनरेशन से वही धंधा चल रहा. अरे जनरेशन में हमारे तो किसी के पास मोबाइल नहीं था, आज तो मेरा बेटा 3-3 मोबाइल लेके घूम रहा है. तो जमाना तो बदल रहा है. तो आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू चेंज विद द जमाना एंड रियली अडॉप्ट दिस. बट इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज छोटे व्यापारी ऑनलाइन कर रहे हैं ना रमेश जी, मैं तो अचंबा होता मुझे
कि वो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जो हम अपने आप को जो बड़ा दुकानदार समझते हैं हम भी नहीं कर रहे हैं। वो बहुत निम्बल हैं, उनके यहाँ हायरार्की नहीं है कि उनको डिसीजन बनाना है, वो खुद का डिसीजन लेते हैं। या और इसका सबसे बड़ा अगर सीख है तो पिछले 2 महीने में जो हमारे किराना व्यापारियों ने हमारे देश के लिए किया है, आई थिंक हमको उनसे सीखना चाहिए। बस 130 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा जला है, किसी के घर में सामान कम नहीं हुआ है, ट्रकें नहीं चल रही थी, किराना वाला 4 बजे उठ के मंडी गया है, 4 बजे उठ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है, साइकिल में कार्टन भर के लेके वापस आया अमूल का और बेचा उसने। तो आई थिंक दैट इज द लेसन दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। Before signing out, she has asked one question to Nagesh ji, which I'm sure it is going to be close to his heart. You know, the question she has tried to ask is that what is your advice, Nagesh ji, in terms of the training aspect for retail community regards to finance, operations, and emotional front? You know, so your pearl of wisdom, sir. A very, very tough question. The emotional part, let's accept the fact that there are going to be job losses. Because if the businesses are going to run at a 50%, 60%, 70%, okay, it will be very difficult for the retailers to sustain 100% employees. They will have an option either to cut jobs or they will have to have an option in order to share with everybody. या तो 10 की जगह 6 लोग काम करेंगे या 10 लोग जो है 60% या 50% सैलरी पे काम करेंगे। ओके, जब तक कि थोड़ा माहौल ठीक हो जाता है, या तो आप में से कोई ऐसा ओनर है जिसके पास काफी पैसा है, वो और एडिशनल इक्विटी डाल दे और 6 महीना 9 महीने संभाल ले। बट मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे 10-15-20% लोग हैं जो कि 6 महीना 9 महीना रेंटर और सैलरी दे के बिना धंधे के चला सकते हैं। So that's the first part of that is the reality. So like I said earlier, your numbers are anyhow going to come down. So your numbers will also be less required. A lot of people who have gone back to the village may not come. Be prepared for that. If you want to do something good for them, you can do, but more on a humanitarian cause and not as a business. Yeah. As far as emotional is concerned, you have to help them multi-skill. You have to help them skill up. You have to help them grow in life. And this is extremely important. And you have to give them support when they are in distress. I want to propagate about what we do. और जो हमने ट्रेन सर्कल का जो ऐप बनाया है रिटेल एम्प्लॉइज के लिए, जिसमें कि आज 1,38,000 मेंबर्स हैं, okay, the number of counseling sessions has gone up 6 times in the last 4 weeks because people are wanting to talk to somebody. वो किससे बात करेगा? आप लोग तो वेबिनार में आ गए, 800 लाख का क्वेश्चन पूछ लिए, उसके वेबिनार नहीं है, उसको कहाँ जाएगा वो? So people going on the counseling has gone up. So please provide methodologies for them to talk to you. The communication itself will make a huge difference to them. So एक listening post बना के रखो अपने कंपनी में जहाँ वो किसी से बात कर सके. That is one. Second is तकलीफ तो उनको है और आपको भी है, उनको तकलीफ ज्यादा है क्योंकि उनकी कमाई कम है. So I think we have to see what best we can do. So as Train Circle, we are doing a lot of things to help them. But we are a very small trust, whereas I think the industry is very large. Each one of us have to try to do something for our employees. The last I said was multi-skilling. Multi-skilling is important. Okay, if somebody is only a salesperson, teach him cashiering. If somebody is doing only cashiering, teach him receiving digital payments, handling all the POS systems, so that अगर एक भी बंदा अगर कल को दुकान खोल के चलाना चाहे तो चला सकता है. That's the fundamental way you have to work. Mr. Ashish Gupta, Acme, Jaipur. Unfortunately, we could not capture his video. However, he was kind enough, to post his questions. I'll quickly read it out. And again, I think I'll request Nagesh ji to answer each of them. He has put out 3 questions. Question number 1 is, topmost concern in the minds of retailers today is, how will they survive if market doesn't support? So can we take one by one, or all 3 you want me to put out? Put all the 3. Okay, sir. Second is, how to respond to consumer in the changing consumer behavior space post COVID-19. And last but not the least is, illustrate retail new normal amidst COVID-19. So पहली चीज जो है कि मार्केट सपोर्ट, सर अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं आया. रिटेल एसोसिएशन से हम, हेमंत जी बैठे हैं, मनु बैठा है, सब लोग बैठे हैं.
पिछले 45 दिन से रगड़ लिए हैं, हमारा सर, मेरा बाल झड़ गया और दीवार पे सर मार मार के, कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ दिख नहीं रहा हमको. So let's be very honest. I think we have to learn how to survive on our own self. If we get support from the government, I think it's a bonus which is going to come. So ये जो मार्केट सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मार्केट से क्या सपोर्ट मिलने वाला है. ठीक है, the only support we will get is हमारा कस्टमर हमारे दुकान में आएगा, हम उसको बेचेंगे और थोड़ा वहां से कमाएंगे. I think that's one. सेकेंड जो मार्केट सपोर्ट है, जो मेरी और हेमंत भाई से भी काफी बातें होती हैं, कि अगर हमारे पास सप्लायर्स को हमने पैसा नहीं दिया है और अगर सप्लायर्स के पास उनकी मशीनें नहीं चल रही हैं, तो हमें हमारे दिवाली सीजन का माल नहीं मिलेगा. ठीक है, और हमारे पास जो आज माल है, जो कि हम बोल रहे हैं हम केवल 3 रोटेशन करते हैं, तो हमारे पास वो माल आज इंपॉर्टेंट है, उसको हमको खींच के बेचना पड़ेगा, उसमें से जितना प्रॉफिट बना सकते बनाना पड़ेगा. आपके चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या हम जल्दी से सेल करके माल निकाल लें, कैश हो जाएगा. तो मार्केट क्या सपोर्ट होगा नहीं होगा, बट हमको अपना मार्केट का सपोर्ट बनाना पड़ेगा. सो अपना हिसाब देख के बेचना पड़ेगा. सो यू डिसाइड वेदर यू वांट टू सेल 10 at cost or sell 6 at 20% or 30% margin. I think that's the most important thing that you'll have to think through on the first question. On the second question as to how we are going to live, I think the whole discussion, Hemant ji, Manu ji, राकेश, विपुल, सबने यही बोला है कि हम लोग को सबको कस्टमर को और मार्केट को और सिचुएशन को देख के नेक्स्ट 3-4 महीने चलाना पड़ेगा. और ये टफ पीरियड है, बट ऑल ऑफ अस हैव बीन वेरी वेरी टफन्ड एंड आई एम श्योर टुगेदर वी कैन डू दैट. आज रिटेल एसोसिएशन के साइट पे जाइए, बहुत से हम उसमें एसओपीज डाल रहे हैं, बहुत से डिटेल्स डाल रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है. आपके खुद डीएफयू है, सारे पब्लिकेशंस हैं, इसके पास जाइए. और दूसरा क्या है, आप इसके जरिए किसी भी सीनियर आदमी को आप फोन पे, मेल पे बात कीजिए, सलाह लीजिए, तो शायद हम लोग मिल के ये प्रॉब्लम से निकल के आ पाएंगे. अकेले आने में थोड़ा तकलीफ होगा, बिकॉज हम में से किसी ने ये प्रॉब्लम देखा ही नहीं है जिंदगी में. सो देयर इज नो मंत्रा, देयर इज नो वे दैट एनीबॉडी कैन से कि आप ये करो, आप निकल के आ जाओगे. Nagesh ji mentioned in one of his contexts, early winners. And the question which I have handpicked is survival of quickest, not fittest, first and furious. See, I think I'll start with what Nagesh has said. I think we have to look at long term rather than short term, to be very honest. And next 6 months are going to be survival mode, no matter it is quick or, even fittest. We have to, be practical in our approach. That's what I feel. And do all the inputs during this period of time, because the output, as panelists were also saying, that we don't know what is going to happen. Everyone are predicting some sort of thing. So we have to this is the best time to actually put right inputs into the business, build in efficiencies, inefficiencies, nikalo, try to build in those things so that when actually things start falling in place, the actually desired results will come in. So that's the way to think, maybe survival of fittest or fastest, because right now I think the fastest to get right inputs might be the person who will survive. तो मैं ना ई-कॉमर्स के नजरिए से अगर देखूं इसको, मुझे ऐसा लगता है कि फिटेस्ट का मतलब हमारे फील्ड के अंदर somebody who carries least amount of inventory and inventory which is relevant at that point of time. और अगर इन्वेंट्री की अहम भूमिका है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, then I think there are ways. So, to case in point, Udaan, जहाँ पे people can buy smaller quantities, they can buy throughout the India. So, Udaan के ऊपर करीब 15,000 suppliers listed हैं, जिनके through करीब लाख retailer हर महीने माल खरीदते हैं. So, you can buy smaller quantities, buy more frequently instead of buying once. So, average buying cycle on Udaan is about 4 times a month, which is per week. What it does is that for appropriateness, the merchandise goes up. That's one. I think the second part is that when we are saying fast and furious, I would also say strongest. And the strongest is the one who has the money in the pocket. A lot of people have drained out situations. So if there is a way that you can get credits, so there are various systems which are providing you extended credit, whether it's government or it's bodies like Udaan or it's other bodies who are into supply chain system. If you can avail credit, then you have money in the pocket and you're still doing the business. And the third part is, can you extend the credit, because customer के पास भी पैसा नहीं है. So customer की ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहाँ पे they have intention to buy, but they don't know whether they should buy or they should conserve the cash.
So use money as the manner, use inventory as the manner, and third is use data as the tool. So मनु भाई ने कहा और बाद में नागेश जी ने सपोर्ट किया कि जिनके पास डेटा है वो बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ अपने कंज्यूमर रिलेशनशिप को बनाने के लिए. सो मुझे लगता है कि 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, मनी, इन्वेंट्री एंड डेटा. इनको जितना एफिशिएंटली यूज किया जाए उतना ही बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो सकता है. The question goes like this: please demystify the intrigue around doing away with fitting rooms at stores. Garment is all about fit and experience. What will happen if we take the fitting experience away? How critical will it be, and how will we be able to convert in the final place? You know, eventually the winner is to convert the customer to business. Manu bhai. Yeah, you can't take away the fitting experience, particularly in ladies' garment. Option is either let the customer try in the store. What we have planned is once the customer tries a garment, so once the customer tries the garment in the store, the garment is picked and put in a separate bag, which is quarantined for 72 hours. It is steamed and then put back on the shelf. The other option is to tell the customer you take the piece home, and like Mr. Nagesh said, you can take 2 pieces, keep 1 piece and return 1 piece. Without fitting, I don't think any customer is going to buy it. Particularly items, I mean, a sari, you don't need a fitting. But certain garments like kurtis, salwar suits, they want a fitting. Thank you everybody for being a part of this webinar of ours. I'm sure, you know, the aim was to reach out to the small time retailers, जो छोटे retailers हैं, जो mid-size retailers हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. एक हमारी छोटी सी कोशिश. आशा करती हूँ कि वो सुने हैं हमको और थोड़ा उनको समझ भी आया है कि किस तरीके से उनको नेक्स्ट स्टेप लेना है ताकि उनके बेहतरी के लिए वो आगे बढ़ सकें और जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं फिलहाल उनको कैसे ओवरकम करें. तो मेरा तहे दिल से सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपने अपने जो पॉइंट्स रखे हो ये बहुत ही वैल्यूएबल है. एंड थैंक यू सो मच जेंटलमैन. Thank you for everything. Thank you. God bless you all. Thank you so much.